हम 18 भाई ज़िंदा हैं इस वक्त, 4 भाई हमारे फौत हो चुके हैं, तकरीबन 20-21 हमारी बहनें हैं, मेरे 2 शादी हैं, 14-15 बच्चे हैं मेरे, और एक हम लोगों ने एक बस रखा हुआ है घर के लिए, और राशन के लिए एक ट्रकनुमा माजदा जो घर का राशन लाता हो। आज हम यहाँ पे मिलने आए हैं कोयटा कुचलाग में एक बहुत बड़ी खुशहाल फैमिली के साथ। बड़ी और खुशहाल से मुराद ये है कि एक ऐसी फैमिली जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाली फैमिली का तस्वीर दे सकती है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हमें शहरों में लगता है कि जैसे मर रहा है, और यहाँ आके मुझे लगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान के कुछ इलाकों में थ्राइव कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब भी एक घर में 112 लोग रहते हैं, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक साथ रह रहे हैं बल्कि बेहद खुश हैं। अजीबुल खान सलेमान खेल किबलिये से ताल्लुक निदा और यो कबाली मशर तोगा बांधी ژوند ادا کوو او زموږ کورنۍ ژوند په دې ډول دا چې زموږ کور کې فیملی تقریبا 112 نفر خاندان سے خپل کور کی فیملی لرم۔ میرا نام حاجی حبیب اللہ غلجی ہے، یہ میرے والد محترم صاحب ہیں، اس کا بڑا بیٹا ہوں میں، میرے بعد دوسرے نمبر پہ حاجی محب اللہ غلجی ہیں، میں خود حج گروپ آرگنائزر ہوں، پرائیویٹ حج کا کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گھر کی ٹوٹل مرد خواتین بچے تقریباً 112-113 تک ہے۔ حاجی صاحب کی 4 شادی ہوئی ہے، جس میں 3 ابھی زندہ ہے اور ایک فوت ہو چکی ہے۔ ہم 18 بھائی زندہ ہیں اس وقت، 4 بھائی ہمارے فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 20-21 ہماری بہنیں ہیں، اور بقیہ ہم لوگوں نے بھائیوں کی شادی ہیں، اس کے بچے ہیں، میرے 2 شادی ہیں، 14-15 بچے ہیں میرے، جوائنٹ فیملی ہے۔ میں خود کاروبار سنبھال رہا ہوں، اور میرا مطلب ہائی گریجویٹ لڑکا جو ہے میرا چھوٹا بھائی محب اللہ ہے، جو اس وقت ایم فل بھی کر رہا ہے، بقایا جتنے بھی چھوٹے ہیں سارے پڑھ رہے ہیں۔ ویسے سب سے پہلے ہمارا گھر کا جو اصول ہے وہ تھوڑا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسے، دینی تعلیم ہم اس کو دیتے ہیں۔ یہ 4 سال کی عمر 7 سال تک ہم اس کو مدرسے بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد اسکول بھیجتے ہیں، اور اسکول میں جب وہ اسے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد سینٹر ہوتے ہیں، ٹیچر آتے ہیں گھر پہ، اس کو وہی سبجیکٹ جو اسکول میں ہیں وہی پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کو تھوڑا 1 گھنٹے کا ریسٹ ہوتا ہے بچوں کو، اور اس کے بعد پھر مولوی صاحب آتا ہے، وہ بھی گھر میں آتا ہے، اس کو دینی تدریس دیتے ہیں۔ وہ ہم لوگ پھر جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں 2 میرے ایک بھائی قاری ہے الحمدللہ، ایک قرآن حافظ ہے، پھر گھر میں ہم لوگوں نے ایک سین بورڈ بنایا ہوا ہے، یہی میرا بھائی جو ہے یہ گھر کی عورتوں کو دین کے حوالے سے وہ بھی پڑھاتا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یہ سسٹم سارے میرے ایک بھائی ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ مطلب اس کو بڑے کا عزت کیسے کرنا چاہیے، بڑوں سے ملنا کیسے کرنا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، یہ سارا ترتیب جو چھوٹا بھائی ہے وہ سکھا رہا ہے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محب اللہ ہے، یہ میرے والد صاحب محترم ہے، اور یہ میرے بڑے بھائی حاجی حبیب اللہ ہے۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں ایم فل کا، ماسٹر میں نے سوشیالوجی میں کی، اور ابھی ایم فل جو ہے وہ بھی میں سوشیالوجی میں ہی کر رہا ہوں۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ سب لرننگ کے تھرو ہوتا ہے، جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ گھر کے بڑے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب خود ہی اس طرح ہے کہ اس نے سب کو ایک بانڈ میں رکھا ہوا ہے، کہ مطلب ایک سرکل بنایا ہوا ہے، اس سرکل سے آگے کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا۔ تو ان میں اللہ پاک نے وہ کریکٹرسٹکس رکھی ہے کہ ان پہ سارے بانڈ ہے، اور جس بانڈنگ کی وجہ سے ہم سب ایک ہی سرکل میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بزنس کے حوالے سے جو ڈیسیجن پاور ہے وہ میرے بڑے بھائی کرتے ہیں۔ جو گھر کا ماحول سسٹم جو رکھا ہوا ہے یا جو بنا رہا ہے اسٹرانگ، وہ والد صاحب ہوتا ہے۔ حجی صاحب بات یہ ہے کہ میں تو خود یہ تصور کر رہا ہوں، ہم لوگ جو ہے گھر میں اسلامی تعلیمات جو ہوتے ہیں اسی کے تحت اپنا زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی تحت ہمارا جو فیملی ہے، جو بھائی نے ابھی بتایا، سب سے پہلے اس کا مین ذمہ دار جو ہے میرے والد صاحب ہے۔
वो इस चीज़ को जो है घर में कोई बंदा इसे तस्वूर नहीं कर सकता है कि मतलब हम एक अलहदा ज़िंदगी गुजारें। मेन इशू हमारा ये है कि मतलब दीनी हवाले से ये चीज़ हमारे घर में है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा एक किचन है, तकरीबन ये किचन 4 से 80 फुट पर मुश्तमिल है, एक बड़ा सा किचन है। फिर हम ये उसको पश्तो में चैबर, जिसमें चाय बनाते हैं, 3 दाने बड़े चैबर होते हैं, उसमें चाय पकाते हैं। फिर हर माह उसी से अपना छोटा चैबर भर के अपने बच्चों को अपने कमरे में उसको नाश्ता करवाते हैं। दिन में तो बच्चे नहीं होते हैं, फिर यही सिस्टम है कि हर माँ अपने बच्चों को अपने कमरे में नाश्ता, क्योंकि वो बच्चे थोड़ा आगे पीछे होते हैं, 10 मिनट पहले आया बाद में आया। रात को जब हम सारे घर पहुंचते हैं मगरिब की नमाज से पहले, हाजी साहब का ये कानून है कि हर बंदे ने घर पहुंचना है मगरिब की नमाज से पहले। फिर ये होते हैं कि रात का जब खाना तैयार होता है, हमारी जो पीछे आपको नज़र आएंगे भाई हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो सारे हम लोग मर्द, जो बच्चे भी हैं मर्दों में छोटे छोटे और बड़े भी हैं, एक दस्तरखान लगाते हैं और वो बैठक में होता है खाना। और औरतों का फिर यही सिस्टम है कि वो एक बड़ा सा दस्तरखान बनता है घर में, जिसमें वो बच्चियाँ होती हैं, औरतें होते हैं, वो फिर घर में यही तरतीब बनाते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं। नहीं, इसमें ये है कि जो ये तो छोटे छोटे हैं, बकाया इसमें थोड़े बड़े जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, कुछ मदरसे गए हुए हैं। ये जो घर में मौजूद हैं छोटे बच्चे, जो हम हाथ से पकड़ कर उसको कभी लेके जाते हैं, कभी नहीं ले जाते, तो एक तरतीब दे रहे हैं उसको। फ़िलहाल ये बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब यहाँ पे आते हैं। जो मदरसे में गए हुए हैं तकरीबन 3 से 4 बजे तक आएंगे। हमारा घर का कुल रकबा फुट के लिहाज से 88,000 फुट है और एकड़ के लिहाज से 2 एकड़ है। इसमें टोटल 33 कमरे हैं, एक बड़ा सा किचन है। यही 33 कमरों में हम लोग जो है रह रहे हैं। मेहमान खाने की है, हमारा कबायली रस्म रिवाज है। मेहमान खाने में तो अभी आप बैठे हुए हैं, तकरीबन 14-15 गज का हमारा एक बैठक है, 6-5 गज का दूसरा है, साथ में 2 कमरे और भी हैं मेहमानों के लिए, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो रहने के लिए होते हैं। भाई इसका ये सिस्टम है कि मेहमान का यहाँ पे हर चीज़ का सहूलत होते हैं घर से। पहले तो यहाँ पे लोगों का ये सिस्टम भी होता है कि जिसका बड़ा मेहमान खाना हो उसमें एक किसने मजदूर रखा हुआ हो, लेकिन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। मेहमान की जो खिदमत है खाने पीने की, वो घर से हम लोग करवा देते हैं। बच्चों के लिए तकरीबन 50 के करीब खुरमानी के दरख्त लगाए, 70-75 के करीब हमने अनार लगाए हैं, और अंगूर के तकरीबन 30-35 है। ये बच्चों के लिए हम लोगों ने लगाए, और एक हम लोगों ने एक बस रखा हुआ है घर के लिए, और राशन के लिए एक माजदा, ट्रकनुमा माजदा, जो घर का राशन लाता हो या किसी और चीज़ को यह घर में रखा हुआ है। दूसरा एक छोटा सा गाड़ी है प्रोबक्स, ये घर में 24 घंटे मौजूद होता है। खुदा न खास्ता कोई टेंशन आ जाए, बीमार पड़ जाए बच्चे, इसको लेके वापस आके ये घर में 24 घंटे मौजूद होता है। और कारोबार के लिए दूसरा गाड़ी हम लोगों ने रखा हुआ है। और बच्चों को हम तकरीबन महीने में एक बार जो ये बैठे हुए हैं, जिसमें 4-5 हम लोग बड़े मर्द होते हैं, बकाए ये छोटे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको ज़ियारत का चक्कर या हाना उड़क यहाँ पे बलूचिस्तान में तो वो पिकनिक पॉइंट नहीं है, यही 2 जगह है। इसको महीने में एक बार अपना तकरीबन 1 दुम्बा या 1.5 दुम्बा लेके कढ़ाई भी बनाते हैं, उसको सारा इंतज़ाम उधर खैमा मैमा लगा के इसको पिकनिक पे लेके जाते हैं। और इस वक्त घर का सारा खर्चा वली मोहतरम साहब के हाथ में है, जिसमें तकरीबन 5,70,80 तक 6 तक तकरीबन आ जाता है। 50 किलो आटा हम दिन में पकाते हैं। आजकल के दुनिया या कल्चर को देखा जाए तो सबसे यूनिक बात यही है कि हम सब एक ही जगह जॉइंट फैमिली में और एक ही जगह रह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा यूनिक बात है आजकल के कल्चर। मशवरा तो यही है कि मतलब जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मतलब ये बेहतर है, बेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे आप
कलेक्टिव सोच लेके चलते हैं कोई इंसान, वहाँ पे आपको मतलब मिसाल के फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ कोई शादी वगैरह होती है या कोई ऐसे गम की कोई ख़बर होती है ना, तो वो सारे कंट्रीब्यूट हो के उसको डिस्ट्रीब्यूट हो के तकसीम जब हो जाती है तो वो गम हो या शादी उसका असर भी कम हो जाता है और इंसान पे बर्डन भी नहीं रहता। हमारा फैमिली एक मिसाल है और इसको मिसाली भी बनाना चाहते हैं क्योंकि ये एक मिसाल है दुनिया के लिए। अपने बच्चों को यही दर्स दे दो जो दर्स हमको हमारे वालिद साहब की तरफ से मिला हुआ है। हम फिर ये कहते हैं कि मतलब वो आदमी पे डिपेंड करता है। हम फिर ये कहते हैं कि बड़ा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान।